بات تھی وہ کسی نے یہ بات نہیں کی تھی، اور میرے علم میں بھی ہے کہ کسی نے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے متعلق بات نہیں کی تھی. اس وقت بھی بات یہی تھی کہ جی ہم انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں انکوائری کے لیے ریکویسٹ کریں، اور وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ ریکویسٹ کرنے کی بالکل. جی طارق مسعود یاسین صاحب میرے بیچ میٹ ہیں. میں اظہر اور طارق مسعود یاسین صاحب ہم تینوں بیچ میٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھے ہوں گے. ایک رول نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا 5 ہوتا ہے، کسی کا 6 ہوتا ہے، کسی کا 7 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو وہ اس رول نمبر میں مجھ سے آگے ہیں. ادروائز وی آر بیچ میٹس. اگر طارق مسعود صاحب یا کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اسپیشلی اس سینیورٹی کا افسر گریڈ 20 21 کا، تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا، اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک سینئر یا جونیئر کی بات ہے میں یہ کلیئر کر دوں، کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. یہ 15th کامن کے 1 منٹ میں پورا جواب دے دوں. سو کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. مجھے عزت دی ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اظہر میرا بیچ میٹ ہے، میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے. سو ہم یہ نوکری آپ باقی بھی صوبوں میں دیکھیں گے یا باقی آرگنائزیشنز میں دیکھیں گے، کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک آدھ بیچ سینئر جونیئر بھی کر لیتے ہیں. طارق مسعود صاحب از اے بردر آفیسر، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں. جی سر اس میں سیاسی بات کرتے ہیں. 20 کو اے پی سی ہونی ہے، 20 کو اے پی سی ہونی ہے، اور اے پی سی میں فیصلے کیے جانے ہیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن نے نکلنا ہے. تو وہ جلسے جلوس ریلیاں جو ہوں گی اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ تھوڑی سی سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے جو سیاسی پارا ہے وہ کافی ہائی ہونا، لیکن وہ آنی سردی ہیں، لیکن سیاسی پارا جو وہ ہائی ہوگا. تو آپ کا پارا کیسا رہے گا؟ ایک سوال کریں گے تو میں جواب میں آپ کا سوال آپ کا بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا میں قانون کا طالب علم ہوں. میں اپنے ذہن میں بڑا کلیئر ہوں. حکومت کا کام ہے پالیسی سازی، حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا، ہمارا کام ہے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا. سرکار جو پالیسی بنائے گی ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. 31 سال میری نوکری ہو گئی ہے، 33 سال سر کی ہو گئی ہے، 31 سال ہم یہی کرتے رہیں. جو پالیسی ہوگی، وی آر بیسیکلی پالیسی امپلیمنٹرز، پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم سپوزیشن پہ جانا بھی نہیں چاہیے. جب اس وقت ہوگا جو بھی پالیسی ہوگی اس وقت جو صحیح ہوگا، جو قانون کے مطابق ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ اس وہی قدم ہم لیں گے. ایک بات یہاں بھی جواب دے دوں بیکاز ٹھیک ہے مجھے یاد رہتا ہے. سو آپ ریٹ کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، ٹھیک ہے. ایک نوٹیفیکیشن کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اور اس کے مطابق مجھے یہاں پہ آنے کا کہا. میں ملتان 4 چھوڑ کے یہاں آ کے چارج میں نے لے لیا ہے. اب یہ بات ہے جنہوں نے مجھے لگایا ہے اور جن لوگوں نے ریٹ کی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے گی کورٹ آف لا. ہمارے لیے وہی ہے جو کورٹ آف لا کا فیصلہ ہوگا اور جو سرکار کا فیصلہ ہوگا. میں تو سیکشن افسر کی ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوں، وہ کہیں گے اسلام آباد چلے جاؤ، میں چلا جاؤں. یہ تو سیاسی باتیں ہوگی ساری. آپ کچھ کام کی طرف آ جائیں. یہ ہے کہ آپ کا جو فرق ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ لاہور شہر میں اگر آپ نے نفری کی بھی بات کی کہ لاہور شہر میں نفری بہت کم ہے. اگر بات کریں انویسٹیگیشن کی تو 4000 صرف ملازمین ہیں جو 1.5 کروڑ کی عوام کو کور کر رہے ہیں، اور ایک انویسٹیگیشن کے بعد 250 مس رہے ہیں. ایک یہ دوسرا یہ بتا دیں کہ اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے ڈاکو راج. اب ڈاکو زیادتی بھی کرنے لگ پڑے ہیں خواتین کے ساتھ. ایک گجرپڑا میں ایک واقعہ ہوا اور اس سے پہلے جو ہے وہ سٹی رائے گنج میں ہوا. تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی آپ اس کام میں؟ یہ آپ میں سے کسی کا وہ کھلا ہے اس کو بند کریں گے تو یہ میرا مائک چلے گا. مائک جو آپ کے سامنے ہے لگ گیا. اچھا چلے، میری آواز تیز ہے، سب کو آ رہی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ نے نفری کی بات کی، ہمارے ٹوٹل پنجاب کی جو یونیفارمڈ فورس ہے جو سینکشنڈ ہے وہ کوئی 180 پلس مائنس ہے. ٹھیک ہے. میں ساؤتھ پنجاب سے اس وقت آ رہا ہوں.
साउथ पंजाब आधा पंजाब है एरिया के हिसाब से, ठीक है, और आबादी के हिसाब से 1/3 है। वहाँ पे इस वक्त कोई 25-26 हज़ार फोर्स काम कर रही है, ठीक है। बाकी सारी की सारी यहाँ नॉर्थ पंजाब में इस वक्त ड्यूटी कर रही है। हम हर जगह हार्ड प्रेस्ड हैं, हमारी नफरी हर जगह कम है। इस हुकूमत ने हमारे साथ दो जो अच्छे इस वक्त काम किए हैं, एक हमारी जो गाड़ियाँ सैंक्शन की हैं, और वो बहुत बड़ा कदम है कि हमारे थानों की गाड़ियाँ इमीडिएटली नहीं हो जाएंगी। दूसरी, रिक्रूटमेंट की परमिशन दे दी है और मेरे ख्याल में वो अंडर प्रोसेस है। हमारे एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अंडर प्रोसेस है। हमारी कोशिश ख्वाहिश यही होगी कि जल्द अज जल्द हम इसको रिप्लेनिश कर सकें, और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चूँकि मुसलसल लोग रिटायर होते जाते हैं तो कमी हमारी मुसलसल बनती जाती है। सो हमें एक पाबंदी से इससे हमें मुस्तस्ना करार दे के हमें ये वो कर दें कि जी हम पीरियाडिक अपनी रिक्रूटमेंट कर सकें, ताकि जो हमारी कम से कम सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो हम बराबर कर सकें। जहाँ तक सवाल है इसका इन्वेस्टिगेशन की नफरी कम होने का, CCPO लाहौर यहाँ पे हैं और वो अपनी मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे। जो मैंने पहली बात की है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेट ऑफ लॉ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डकैतीज़, रॉबरीज़ वो रुकती तब ही हैं जब आप डिटेक्शन करते हैं, जब आप मुलजिम पकड़ते हैं तो वो सबसे बेहतर प्रिवेंशन है। आप जितनी भी नाकाबंदियाँ कर लें, आप कुछ भी कर लें, उससे नहीं होगा। गैंग जब कोई पकड़ा जाता है तो उसी से वो होता है, आगे फर्दर प्रिवेंशन होती है। और आज मैंने उनको बुलाया भी था, मेरी उनसे बात भी हुई है यही लाहौर के क्राइम के सिलसिले में, और इंशाल्लाह कल या एट द मोस्ट परसों मैं ख़ुद लाहौर पुलिस के पास जाके उनके साथ बैठ के जो उनकी क्राइम की सिचुएशन है वो उनके साथ डिस्कस भी करेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं, जो कुछ हमारे इल्म में है या जो हेल्प या सपोर्ट हम दे सकते हैं, वो इंशाल्लाह उनको देंगे। आज जो वाक़या हुआ तो उसके बारे में बता दें। जी, उसमें मैं दोबारा आपको कहूँगा, पहले भी मैं जब यहाँ बैठता था एज एडिशनल आईजी ऑपरेशन तो मैं यही बात करता था, जो इंडिविजुअल क्राइम है मैंने आज चार्ज लिया है। आप CCPO लाहौर, हमारा जो क्राइम का है वो जो DPO CPO उस पे आके ख़त्म हो जाता है। उससे आप पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। मैं तो आज सुबह ही चार्ज लिया है, सो मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, बट आई डेफिनेटली आस्क देम। क्या आप पुलिस फोर्स को पॉलिटिसाइज होने से बचाने के लिए भी कोई इक़दाम करेंगे? और इसके अलावा जो CCPO लाहौर है, उनकी जो तैनाती है वो सी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको तरक्की नहीं दी गई 20 से 21वें ग्रेड में, तो CC को अपॉइंट करना क्या ये मेरिट है? इस वक्त देखिए, बात ये है कि ये प्रोरोगेटिव है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि जी वो किसको लगाते हैं, ठीक है। और उसमें जाहिरी बात है कि जो इस तरह का जो भी अफसर होता है वो नौकरी से नहीं निकाला जाता, ठीक है। वो अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो डिलीवर कर सकता है तो गवर्नमेंट का ये हक है कि वो उसको लगाए। अगर वो फेल होता है तो जाहिरी बात है उसके रिपरकशन सबके लिए होते हैं। सो गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही उसको लगाया है। जो बात आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें उनके इल्म में होती हैं। हम भी जब पोस्टिंग जिसकी करते हैं वो सारी चीज़ें देख के करते हैं। सो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, उसमें मैं नहीं कोई वो कर सकता। 2-3 दिन जो गुजरे हैं तमाम लोगों ने देखा है टीवी स्क्रीनों पर भी कि बात यह है कि लोगों में एक तासुर है कि पुलिस की ग्रुपिंग हो चुकी है, 2-3 ग्रुप पुलिस में बन चुके हैं। कल भी टीवी स्क्रीनों पर चलता था। सर ये बताएं कि आपने क्या संभाला है, इन ग्रुपों को आप तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे इन ग्रुपों को? क्योंकि बात यह है कि 2 ग्रुप बन चुके हैं। कल जाहिर जगह की तस्वीरें जो शायद दस्तगीर साहब रहे हैं उनके साथ कुछ लोग हैं, कुछ CCPO के साथ हैं। देखें, बात एक बात का जवाब दे दूं आपकी। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ सारे एडिशनल आईजी बैठे हुए हैं। तो साबका जो आईजी दस्तगीर साहब थे, उन्होंने जितने भी डिपो लगाए पंजाब में, क्या आप उनको साथ लेकर चलेंगे या उनको तब्दील कर देंगे? ठीक, पहला आपका सवाल मुझे 2 सवाल करके क्या पूछा था आपने, कैन यू रिपीट? अच्छा, ग्रुपिंग का। अच्छा, बात ये है, पुलिस में मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है।
किसी का कोई ग्रुप नहीं है। आपके सामने सारे अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 बजे मैंने बाकी को भी बुलाया है। कोई पुलिस में ग्रुपिंग नहीं है, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं। हाँ, एक वक्ती गुस्सा बंदे को आता है जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, वो एक वक्ती ज़ाहिरी बात है, बिकॉज मुझे भी डेफिनेटली वो मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ। शुएब दस्तगीर साहब इज़ एन एक्सलेंट कमांडर, ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ज़ाहिरी बात है, एक वक्ती बात होती है, लेकिन इसको आप ग्रुप्स उस तरह का ना करें। हम कोई यूनियंस तो है नहीं कि जी ये इत्तेहाद यूनियन है और ये इत्तेफाक यूनियन है और ये आपस में वो इनका वो, इस तरह की कोई ग्रुप्स नहीं है। पुलिस एक है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एक है, बीच में इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आपने बात की है, मैंने शुरू में ये कहा था, ये वही टीम है जिसके साथ मैं भी हिस्सा था, बल्कि हूँ, ठीक है। मैंने आज ही चार्ज वो वाला छोड़ा है और ये चार्ज लिया है। सो आई एम ए पार्ट ऑफ दैट टीम। कोई बंदा पंजाब से, कोई भी अफसर किसी भी रैंक का, किसी के खिलाफ कोई भी इस तरह की चीज़ इस पे नहीं होगी। कोई अफसर नहीं निकाला जाएगा, कोई डीपीओ आरपीओ कोई नहीं निकाला जाएगा। बेहतरीन टीम है, वील वर्क विद दिस टीम। हमें इस टीम की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है। ये बाज़ मैंने चैनल्स पे वो पढ़ा कि जी लिस्टें बन रही हैं, सो मुझे नहीं पता चला वो लिस्टें किधर बन रही हैं। कोई लिस्टें नहीं है, कोई अफसर कहीं पर भी किसी को नहीं निकाल रहा। आप आईजी पंजाब हैं, कल कलाम को जिस तरह से सीसी को लाहौर जो सरकार ने तो इस बेस पे ट्रांसफर किया गया कि एक कत्ल था, एसएचओ की गलती थी और वो किसी बड़ी शख्सियत के बहनोई के बिजनेस पार्टनर थे। एक एसएचओ की गलती सीसीपीओ को सजा दी और उसके बाद उसे ट्रांसफर कर दिया और आईजी को एतमाद में नहीं लिया और आईजी साहब का यही गिला था। कल कलाम को अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं जिस वक्त नोटिफिकेशन होगा उसी वक्त चार्ज छोड़ूंगा और जिस जगह जाने के लिए हुक्म होगा उस जगह जाके चार्ज लूंगा। यार इस टॉपिक के अलावा कोई अच्छा, और एक बात मिनट कर लेने दो, छोड़ दे इस टॉपिक ठीक, को। अच्छा। ये बता दें सर, ये बता दें आपके और हमारे जो है वो खबर के हवाले से जो है वो कम्युनिकेशन रास्ते बड़े जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर होती है तो हम जब उसको चलाते हैं तो बाद में किसी मुतल्लिका एसपी डिप्टी का फोन आ जाता है कि ये इस तरह से है। ये लोग पहले फोन नहीं उठाते, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसएचओ हो। जब खबर चल जाती है उसके बाद ये तस्दीक करने के लिए कॉल अटेंड करते हैं। आया कि ऐसा भी कोई जो है वो अहकाम जारी करेंगे? मैंने उस वक्त भी जब मैं यहाँ था आप लोगों के साथ राब्ते में था, ठीक है। साउथ पंजाब में भी मैं सबके साथ राब्ते में था। उस वक्त भी हमने कम्युनिकेशन पॉलिसी भी बनाई थी, वो हमने तमाम को कि जी इन्होंने आपको हेल्प और असिस्ट करना है मीडिया को, क्योंकि मीडिया ना सिर्फ हमारे कान और आंखें हैं बल्कि अब तो ज़ुबान भी है। जो बात हम आवाम तक पहुंचाते हैं उसके लिए ज़ुबान भी मीडिया ही है। सो मेरी हर एक के साथ यही, और मैं अभी 5 मिनट पहले सीसीपीओ लाहौर वाज विद मी, मैंने उसको भी यही कहा कि मीडिया पे बेतहाशा स्पेस अवेलेबल है, अपनी स्पेस को यूटिलाइज़ करें, बी इन कांटेक्ट विद द मीडिया। आपके साथ इंशाल्लाह हम कांटेक्ट में रहेंगे। जो चीज़ें हम पहले नहीं कर सके हैं किसी भी रीज़न से, आप इंशाल्लाह वापस आके उन तमाम को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि अहमद साहब जो है पंजाब में इंक्वायरीज के हवाले से स्पेशल इंक्वायरियाँ कराई जा रही हैं। दर्जनों ऐसी इंक्वायरीज हैं जो आईजी ऑफिस से अफसरान जो है वो करते हैं, जो इस मुख्तलिफ अजला में है। उस इंक्वायरी के बाद फौरी सजा नहीं मिलती, बाद में वही इंक्वायरी ऑफिसर मुकामी मैंने दोबारा चला जाता है मामला। मैंने आपको कहा है आज जो हमारी मीटिंग हुई है उस पे एडिशनल आईजी साहब से यही हमने रिक्वेस्ट की है कि आपने ना सिर्फ इंक्वायरी करनी है बल्कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है, ठीक है। ये नहीं है कि जी इंक्वायरी करके आपने डीपीओ आरपीओ को भेज दी और आगे वो सरखाने में डाल दे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी यही करेंगे। आज भी काफी हद तक जो है ना कुछ चैनल पे लाइव कट हुआ आपकी सेरेमनी और कुछ में नहीं, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि बाद में होगी। और इसी तरह कुछ और मामला पर पूरी फोन बड़े नखरे से उठाए जाते हैं माजरत के साथ, तो हमें तो तस्दीक ही करनी होती है, कोई अपने जरूरी काम नहीं करवाने होते। तो देखिए, मैं जब पहले आया था ना, पहले दिन अगर आप लोगों को याद हो, पहले ही हफ्ते इसी जगह बिठाया था सबको, ठीक है। उस दिन मैंने एक बात की थी और आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
میرے لیے کوئی بھی چینل چھوٹا نہیں ہے, کوئی چینل بڑا نہیں ہے. میرے لیے کوئی رپورٹر بڑا نہیں ہے, کوئی رپورٹر چھوٹا نہیں ہے. میرے لیے سینئر رپورٹرز بہت قابل عزت ہیں, لیکن ینگ رپورٹرز جو ہیں وہ ایکولی, بیکاز وہ ہمارا فیوچر ہے, ان کو گروم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. سو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. کسی میڈیا ہاؤس پہ یا کسی بھی چینل پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. نائب صاحب بیٹھے, انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگلے مہینے پولیس پروٹیکشن بورڈ کا اعلان ہے, شیخ عمر کے لیے سفارش کریں گے آپ؟ میں امید یہی ہے کہ میں بورڈ میں نہیں ہوں گا, کیونکہ میں گریڈ 21 میں ہوں اور 21 والے 22 والے بیٹھتے ہیں. تھینک یو.